A very pleasant morning to all of you, class 7. In the previous video, we have been discussing the properties of multiplication of integers, and we have discussed the distributive property and then had taken some examples of making the multiplication easier. So moving further in that sequence, today we are going to discuss exercise 1.3. Okay, very simple exercise. You have learned all the concepts related to this exercise. Just revise that concepts also in case you have any doubt. And let us see question number 1 of exercise 1.3. Okay class, moving further with exercise 1.3, and I'm discussing the question number 1, which is given as find each of the following products. Okay, so we have to simply find the products of the numbers by using the properties, basically the rules of the multiplication of integer that we have discussed, that positive integer is multiplied with a negative integer, we get the answer as negative integer, and when two negative integers were multiplied, then we get the answer as positive integer. So following that rules, we have to do this question number 1. Now I am taking two parts for you. All other parts are very simple. Okay, just you have to go through the rules, and in case you have any problem, if you have subscribed the channel, you will get the playlist and you can see the previous videos. Okay, then now the question number 1 and the D part is you're given as minus 316 multiplied with minus 1. Okay, it is minus 1. So minus negative integer is multiplied with negative integer, we get the answer as positive integer, and the numbers will be multiplied simply. It means 316 ones are 316. The answer is 316. That's all. Now in the H part, we have 18 multiplied by minus 18 multiplied by 5 multiplied by minus 4. Okay, so here what you will do, first you will multiply minus 18 with minus 5. Okay, you can multiply minus 5 and minus 4 also, you will get 20, है ना. So अगर 18 and 5 में multiply करेंगे, then 18 5 is 90. It means आपका क्या आएगा, minus 18 is multiplied with minus 5, so you will get 90. Positive मिलेगा, है ना, 90, and then it is multiplied with minus 4. Now a positive integer is multiplied with negative integer, you will get answer as negative integer. It will be minus, and 4 9s are 36, 360 आ जाएगा ना. Okay, so this is about question number 1. All other parts you will be trying by yourself. These are very simple. Now moving towards question number 2. In question number 2, it is given that verify the following. Okay, so there are two parts. One I am doing for you, and the second part you will try by yourself. Verify the following means you have to verify. It means you have to check whether LHS, the things that are on the left side of the equals to, are equal to RHS or not. Okay, that is on the right side. It means जो equals to के right side आपकी कैलकुलेशन है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के इक्वल है या नहीं, ये आपको चेक करना है. Therefore now solving the LHS, what we will get, you will solve the, because it is 18 multiplied with 7 plus minus 3. Okay, then you will obviously solve the brackets according to the board mass. So 18 multiplied with, you will open this bracket, है ना, 7 plus minus 3, plus is multiplied with minus, है ना, it will be minus 3. It is 18 multiplied by 7 minus 3, 4. 18 4s are 72. Okay, now it comes to be 72. Now solving RHS. Your RHS is 18 multiplied by 7 plus 18 multiplied with minus 3. It will be your 18 sevens are 126. Okay, plus now 18 is multiplied with minus 3, you will get minus 54. 18 3s are 54. It will be 126 plus minus 54, है ना, plus is multiplied with negative. Okay, तभी तो bracket open होगी. Now it will be your 72. तो ये LHS equals to, hence LHS is equals to
RHS. तो ये वेरिफिकेशन आपका हो गया. एंड बेसिकली विच प्रॉपर्टी इज दिस दैट यू आर वेरीफाइंग? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. वही तो प्रॉपर्टी है ये दैट यू हैव वेरीफाइड. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ question number 2 you will be trying by yourself. Now moving towards question number 3. So in question number 3 there are two parts are given. The first part is for any integer a what is -1 multiplied with a. Okay, so -1 multiplied with a is what? It is -a. Okay, इसमें तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए. Then the second part is determine the integer whose product with -1 is -22. ठीक है, इट मीन्स वो इंटीजर डिटरमाइन करना है जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ -22 हो. इट मीन्स वो इंटीजर मुझे डिटरमाइन करना है जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ कितना इक्वल्स है? -22. तो बहुत आसानी से आप देख करके बता सकते हैं दैट इट विल बी योर 22. 22 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ करोगे तब आपको -22 मिलेगा. इट मीन्स जब आप -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको इस नंबर का क्या मिल रहा है? एडिटिव इन्वर्स. ये एडिटिव इन्वर्स है ना -22 का. ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ओनली. सो द अदर टू पार्ट्स आर सिमिलर. यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट starting from -1 multiplied by 5. Question number 4 is starting from -1 multiplied by 5. Write various products showing some pattern to show that -1 multiplied with -1 is equals to 1. ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें इससे स्टार्ट करना है. उन्होंने बोला जैसे हमने पैटर्न्स वाले किए ना, पैटर्न से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, वैसे ही इससे हमें स्टार्ट करना है और एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ये शो करना है. टू शो, व्हाट इज आर टू शो? क्या शो करना है हमें? टू शो -1 मल्टीप्लाइड विद -1 इज इक्वल्स टू 1. इस पर पहुंचना है हमें. सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 what is given is starting from -1 multiplied by 5, write various products showing same pattern to show that -1 multiplied by -1 is equals to 1. ओके, तो पैटर्न वाले क्वेश्चन से लाइक हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सीखे थे. ओके, वी हैव डन द नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव इंटीजर, है ना. ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमने बेसिकली किया था टू फाइंड दैट ये वाला मल्टीप्लिकेशन हमने बेसिकली किया था टू फाइंड दैट नेगेटिव इंटीजर की जब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इंटीजर के साथ होती है द रिजल्ट विल बी नेगेटिव इंटीजर, है ना. वैसे ही पैटर्न, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वी हैव टू शो दैट -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर आप पैटर्न जब बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा पैटर्न? यू सी -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? -5. ओके, क्योंकि आप ये मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं. नाउ -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि आपको आना क्या कहाँ है? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पर आना है ना. सॉरी, इट इज़ 4. -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू -4. ओके, तो वो आपका है क्या बेसिकली? -5 प्लस 1. ये है ना -4. -5 प्लस 1, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना. इट मीन्स पहले वाले रिजल्ट में +1 कर दो तो -4 आएगा. वैसे ही -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 -3. इट मीन्स फर्स्ट वाले रिजल्ट में +1 कर दो, -4 प्लस 1. ये लिख सकती हूँ ना मैं इसको. ठीक है. नाउ -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -2. ये कितना होगा आपका? -3 प्लस 1. इट मीन्स पहले वाले रिजल्ट में +1 करते जा रही हूँ मैं. देन -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बी योर -1. इट मीन्स दोबारा से -2 में +1 कर दो. ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं -1 को अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. मतलब ये आप सब कुछ सीख चुके हैं पहले, सिर्फ आपको समझना है. -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स -1 में +1 कर दो, पहले वाले रिजल्ट में +1 कर दो, कर दिया. नाउ -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये समझ लीजिए कि ये आपको पता नहीं है, क्योंकि ये तो आपको निकालना है ना. ये आपको पता नहीं है तो आप करने क्या वाले हैं? पहले वाले रिजल्ट में 0 में क्या करेंगे? +1 कर दिया, तो आंसर क्या आया? 0. इट मीन्स -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू
1 हमने फाइंड कर लिया। ओके ओके, दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5. Moving towards question number 5. In question number 5, you have to find the products using suitable properties. Okay, so the properties that you are going to use are commutative property, distributive property, associative property. Okay, and the property that we understood in the multiplication making easier. Okay, so where I have told you some multiplications so that your result will be the multiple of 10 or multiple of 100. okay, which will ultimately make our multiplication easier. तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. ओके, टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, यू कैन सी वेरी क्लियरली इन द फर्स्ट पार्ट इट इज़ 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाइड बाय -36. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर ये ए है, ये बी है, देन ये अगेन b है ना, और ये c है. मतलब ऐसा हो रहा है ना, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, b केवल बाहर और a प्लस c. ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसको ये भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो सेड दैट b हमने कॉमन ले लिया, मीन्स b बाहर पुट कर दिया अगर, तो ब्रैकेट में a बचेगा. यहाँ पर a b की मल्टीप्लाई में से b बाहर निकल गया ना, तो a बचा, प्लस का प्लस आ गया, b और c में से b बाहर निकल चुका तो c बचा. और इन अनदर वे इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर डाउट है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं. तो वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर आपका b बाहर आ जाएगा. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? -48. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी, इट विल बी योर -48. ब्रैकेट लगाएंगे 26, यहाँ पर 26 बचा ना a, और प्लस -36. साइन का पूरा ध्यान रखेंगे. ठीक है, ये वाला प्लस के बाद यहाँ आपका ये -36 बचा है. ठीक है, अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे. इसमें मुझे कुछ भी सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है. और साइड में ये ज़रूर लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको एग्ज़ाम में भी मेंशन ज़रूर करना है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, यह लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये भी लिख सकते हैं, या बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको आप फर्दर खुद सॉल्व करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन ध्यान आएगी जो मैंने आपको बताया था. 125 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 1000. ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको नोट डाउन भी कराई थी. ओके, इन द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दिस. सो व्हाट यू विल डू, क्योंकि आपको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर सॉल्व करना है एंड यू मेकिंग योर मल्टीप्लिकेशन ईजियर. ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि 8 की 53 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल मल्टीप्लाई विद 125. अगर ऐसा ही करना होता तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज सीखने की क्या ज़रूरत थी. ओके, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू विल यूज़ प्रॉपर्टी बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ पर्टिकुलरली सेड, और आपने सीखा है, देन यू विल यूज़ द फास्ट मैथड. तो बेसिकली आप करेंगे क्या, यू विल डू 8 मल्टीप्लाई बाय 153 मल्टीप्लाइड बाय 53. तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की आपने? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूट कर दिया ना आपने, 53 और 125 को चेंज कर दिया. ओके, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाय 125 विल बी योर -1000 मल्टीप्लाइड बाय 53. ओके, और ये आपका इजीली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 53,000 -53,000. So for this you use the commutative property. Now moving to the C part, question number 5, C part. In the C part you can see that there is 15 multiplied by, I'm just writing the question for you so that you can understand. My 15 multiplied by -25 multiplied by -4 multiplied by -10. तो ये भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे. ओके, डू योरसेल्फ. ये आप you can see here you will again use the commutative property and you will just multiply -25 with -4 first. okay, इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे then you will get 25 4s 100 की मल्टीप्लिकेशन then 10 के साथ 1000 and answer will be your -15,000. है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 3 नेगेटिव हैं. ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर.
उसके बाद पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा. ओके, जस्ट ट्राई योर सेल्फ दिस पार्ट, क्वेश्चन पार्ट सी. ओके, देन मूविंग टू द पार्ट डी. -4 multiplied by 102. So here what you will do, ये भी I told you in the making multiplication easier, I have given an example if you remember that. So D part is -4 multiplied by, आप 102 को कैसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 100 + 2. ठीक है, नाउ ये आपकी कुछ ऐसी फॉर्म हो गई, A multiplied by B + C, ऐसी फॉर्म हो गई ना. सो दिस इज़ व्हाट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी ज़रूर मेंशन करनी है. सो इट विल बी योर -400 -4 मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना, या इसको आप लिख लीजिए. -4 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा आपका, प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला प्लस है ना, बिकॉज दिस इज व्हाट A मल्टीप्लाई बाय B प्लस A मल्टीप्लाई बाय C, यही होता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो यू विल गेट -400 -8 एंड द आंसर विल बी -408. ओके, sorry class. Now in the D part of question number 5, what you will do, it is -41 multiplied by 102. So it will be your -41 multiplied by, आप 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 2. ओके, यू कैन राइट इट एज. तो इट मीन्स ये कैसा हो गया, जैसे A मल्टीप्लाइड बाय B + C. सो विच प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, हेयर यू यूजिंग distributive property, by distributive property. So you will get -41 multiplied by 100 plus -41 multiplied by 2. So -4100 and this is your plus -82. So the answer will be your -4182. नेगेटिव की एडिशन नेगेटिव के साथ होगी तो सब्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन नंबर्स ऐड हो जाएंगे. So this is your question number 5, D part. Now the E part is your distributive property, by distributive property. E part, try yourself. The F part is also the distributive property. Just multiplication आपको solve करनी है, ठीक है. E and F, try yourself. Try yourself. Then moving to the G part. G part is also very simple and similar to the previous examples that I have taken while making you understand the things. So -17 multiplied by, now -29 को आप लिख सकते हैं -30 + 1. Okay, this is your -30 + 1. लिख सकते हैं ना -29 को, -30 + 1 करेंगे तो -29 ही आएगा. So here what you, which property you used, by distributive property. Okay, distribution of multiplication over addition. So अब आप इसको जब -30 और -30 + 1 लिख लिया, उसके बाद आपको जस्ट -17 मल्टीप्लाइड विद -30 ये करेंगे, प्लस -17 मल्टीप्लाइड विद 1 ये. देन इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी, 510 एंड दिस विल बी योर प्लस -17 एंड यू विल गेट द आंसर एज 493. ओके, दिस इज योर G part and the H part is also very simple. You will just revise these all the concepts and H part you will try yourself. Okay, so this is all for today. Do complete your questions up to question number 5, and in the next video we will be discussing the remaining question of this exercise. Thank you class. Thank you for watching.